High five guys, do like, subscribe, share, comment and keep learning. Hi guys, how are you? So today we'll be doing the motion and उसमें हम जो topic करेंगे that is equation of motions. So let's start. सबसे पहले there are three equations of motion, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. First is v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half at square. And third, v square minus u square is 2as. तो इन इक्वेशन के बारे में जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कब वैलिड है. These are valid when acceleration is constant or uniform. या हम कह सकते हैं motion is uniformly accelerated motion. जब होती है तब ये तीनों formulas valid. So पढ़ते हैं इनके symbols के बारे में. So as you know, these are the 5 symbols which are being used in this. So let us study what they are. First is U, initial velocity, SI unit meter per second. Second, V, final velocity meter per second. Final velocity मतलब जो बाद में होगी, initial velocity मतलब जो पहले थी. Then A, acceleration meter per second square. Rate of change of speed, acceleration होती है. Rate of change of velocity. आपके लिए चल जाएगा speed में. Then T is time, that is seconds. Then S, small s is displacement, that is in meters. So that is it. Next we see the derivations of these equations. इनके proof क्या है? Derivation basically means proof of these formulas. सबसे पहले आता है हमारे पास v is equal to u plus at. So derivation में it is also known as velocity time relation. इसमें v आता है velocity and t आता है time. सबसे पहले हमें velocity time graph बनाना है, which is like this. So this is the graph of velocity time. Y axis पे velocity है, x axis पे time है. And एक inclined line बनानी है जो start हो रही है initial velocity u से, start हो रही है u से और बढ़ते बढ़ते जब time आपका t हो गया, when the time is t, उस time पे आपकी final velocity हो जाएगी v. तो ये graph हमें बनाना है for all the 3 derivations. उसके बाद हमें लिखना है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है. देयरफॉर स्लोप इस केस में होगी बीडी डिवाइडेड बाय एडी, मतलब वर्टिकल लेंथ बीडी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ एडी. बीडी है v माइनस यू एंड एडी है t माइनस 0. एंड सॉल्व करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी गेट b इज इक्वल टू u प्लस at. दैट इज द फर्स्ट derivation of first equation of motion. Now let us do second equation, जो कि है s is equal to ut plus half at square. This is known as displacement time relation. Displacement time relation, s और t आता है इसलिए displacement time relation भी कहा जाता है इसे. तो सबसे पहले हम again velocity time graph बनाएंगे. This is same as the first one. And after that we will write displacement जो होता है area under velocity time graph होता है. This is the formula for finding displacement. Area under the velocity time graph is displacement. So this shaded region, as you can see, this shaded region is the area under the graph. मतलब जो inclined line है उसके नीचे का सारा area is area under velocity time graph. So ये shape बनती है trapezium. A, B, C and O एक trapezium बनता है. या you can say also triangle plus rectangle. So अगर trapezium ले तो formula है sum of parallel sides into height. So parallel sides होगी P1, P2 and height होगी horizontal height distance between parallel sides. So हमारे लिए P1 हो गया AO left side वाली and P2 हो गया BC right side वाली and CO is horizontal length उन दोनों के बीच में. So AO is U, BC is V and CO is T. So इसको सॉल्व करेंगे by using v is equal to u plus at. फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे u plus at. So ब्रैकेट वाली टर्म बन जाएगी 2u plus at and मल्टीप्लाई होके जब t by 2 अंदर मल्टीप्लाई होंगे then it will multiply with both and cancel out होके this is the formula which we get second equation of motion. So इसके बाद आती है हमारी लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v square minus u square is 2as. This is known as velocity displacement equation because एक साइड velocity है और एक साइड displacement है. Then again we'll be drawing the same graph, velocity time graph same है हमेशा.
इस बार भी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम शेडेड रीजन करेंगे हम, सेम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा इस बार भी, सेम सम ऑफ पैरासाइड इनटू हाइट आएगा, एंड सेम P1 प्लस P2 इनटू हाइट, सेम P1 की वैल्यू BC, P2 की वैल्यू AO, H की वैल्यू CO, अगेन एक की वैल्यू V, एक साइड की वैल्यू B, एक साइड की वैल्यू U, एंड हाइट इज T। तो गाइस यहां तक तो हमारा सेकंड डेरिवेशन और थर्ड डेरिवेशन सेम है। डिफरेंस आता है इसके नेक्स्ट स्टेप में। एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू बाई टी एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वहां से टाइम आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके v माइनस यू बाई ए। तो इस बार इस टाइम को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जो कि हमारे इस पेज की फर्स्ट टॉप पे गिवन है। तो इस टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे v माइनस यू बाई ए। Now this becomes a formula a plus b into a minus b, which is a square minus b square numerator में, denominator में है 2a। So cross multiply करेंगे 2a is equal to b square minus u square, and hence we get the formula b square minus u square is 2as. So this is the derivation or proof of third equation, velocity displacement relation. So guys, these are the formulas and derivation. Please, before starting on with the numericals, first learn all the formulas, learn the name of all the symbols, their SI unit, and then proceed with the numericals. It will be very easy. So let us start. So suppose the question is, a car starts from rest to accelerate at 2 meters per second square for 10 seconds. What is its final speed? Suppose this question is there. First question, very direct and easy. तो देखो सबसे पहले हमने गिवन लिखना है with correct SI units. We have to write down given in correct SI units. तो यहाँ देखो पहला वर्ड जो इस क्वेश्चन में आया है starts from rest. Starts from rest. इससे हमें क्या पता चलता है? U की वैल्यू 0 है. Initial velocity U is 0. Initial velocity U is 0. Then आगे आया है हमारे पास accelerate at 2. तो यहाँ यूनिट्स देखो, इसके यूनिट्स कौन से हैं? एक्सेलरेशन के. एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके आगे पढ़ेंगे तो क्या है? फॉर 10 सेकेंड्स. तो व्हाट इज 10? 10 इज टाइम 10 सेकेंड्स. और अब हमें निकालना क्या है? व्हाट इज फाइनल स्पीड. तो इसका मतलब b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो ये हमारे पास चार चीजें होगी, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है. वी नीड 4 थिंग्स, 3 गिवन एंड 1 रिक्वायर्ड, आउट ऑफ विच U एंड A आर मस्ट. तो हमारे पास U भी है, A भी है, और टोटल 4 चीजें हैं. सो नाउ आवर गिवन इज कंप्लीट. सो गोइंग अहेड, अब हमें देखना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इनमें फिट होगी. विच इक्वेशन ऑफ मोशन फिट्स इन दीज 4 क्वांटिटीज? UBI, ATV, ये चारों क्वांटिटी जिस इक्वेशन में है वो कौन सी है? सो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालनी है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है. V इज इक्वल टू U प्लस AT. अब जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. तो U की वैल्यू 0 प्लस A की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 10. तो यहां से क्या आ गया? 0 प्लस 20 विच इज 20, एंड यूनिट्स SI मीटर पर सेकेंड.
So this is our final velocity. So this is the next question. एक एक करके हम लाइन पढ़ेंगे एंड वी विल राइट डाउन गिवन. ऑलवेज रिमेंबर गिवन लिखना है सबसे पहले. हमने लाइन पढ़ के एंड गिवन हैज टू बी इन एसआई यूनिट्स. तो सबसे पहले करेंगे कार मूविंग एट. मूविंग एट मतलब अभी चल रही है. तो अभी जितना चल रही है दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड. ऑलवेज रिमेंबर पास्ट टेंस वाली या प्रेजेंट टेंस वाली इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड जो फ्यूचर वाली है जो बाद में होएगी दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी. सो यू आ गया 40 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद दिया आपको ब्रेक्स अप्लाइड. तो यहां से आपको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. Second word used is retardation. That also tells you that acceleration is negative. और कितनी है वो 5. So देखो क्वेश्चन में आपको कभी नहीं दिया जाएगा कि -5 है. क्वेश्चन में तो हमेशा मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, उसका साइन नहीं दिया जाएगा. साइन आपने सोचना है इंग्लिश पढ़ के. So acceleration is -5. This is the most important point in this question. उसके बाद क्वेश्चन में कहा है हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग का क्या मतलब, क्या निकालना है? टाइम. हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम, कितना टाइम लगेगा. नेक्स्ट वर्ड आता है टू स्टॉप. टू स्टॉप रुकने में. तो रुकना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. सो यहां जाके हमारे गिवन कंप्लीट होते हैं. व्हेन वी आर डन विद द गिवन क्वांटिटीज then we have to think of which formula will fit them. So U, A, V and T इन चारों में first equation of motion fit होती है. So using first equation of motion, B is equal to U plus AT. वैल्यू डाल देंगे 0, U की वैल्यू 40, एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 और t तो हमें निकालना है. सो वंस यू आर डन विद दिस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन ही करनी है, नथिंग मच लेफ्ट. तो कैलकुलेशन में ये 40 उधर जाएगा, so it will become -40 is equal to -5t. So therefore time is equal to -40 divided by -5. So time comes out to be 8 seconds. Time is your 8 seconds. So that is the answer. एक चीज याद रखना, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. बाकी चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, U, V, A, S नेगेटिव हो सकता है, बट टाइम इज नेवर नेगेटिव. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि हमने पहले भी करा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी है, माइनस नहीं होती है कभी भी. minus means you have done some mistake. Check your given or check your calculation. Time is never negative. This is the second question. So this is the question. Given लिखेंगे. Given is changes its speed from 50 to 30. 50 से 30 आ गया. That means initially 50 पे था and बाद में 30 पे आ गया है. 50 to 30 का मतलब पहले 50 बाद में 30. in 20m. in 20m. तो अब हमें ये पहचानना है कि 20m क्या है. सो कुछ बच्चों को लगेगा कि ये टाइम है 20 मिनट्स, बट ऐसा नहीं है. मिनट्स के लिए MIN यूज होता है. मिनट्स इज MIN. M is used for only meters. Small m unit is used for meters. So this is not time. It is displacement. 20m, 20 meters. इस चीज का ध्यान रखना, ये टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, मीटर्स. और हमें निकालना क्या है? रिटार्डेशन. तो बेसिकली मुझे एक्सेलरेशन ही
निकालनी है, बिकॉज रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन निकालनी है। नाउ वी हैव टू थिंक कि यू वी एस ए इन चारों में कौन सी इक्वेशन फिट होती है। वी हैव 4 क्वांटिटीज जो हमें चाहिए होती है, जिसमें से 3 गिवन और 1 रिक्वायर्ड। सो नाउ विच इक्वेशन विल फिट इन दीज 4 क्वांटिटीज। सो इसमें जो इक्वेशन फिट होएगी दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी इसके अंदर। सो लेट अस सी, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा v की जगह 30 का स्क्वायर, u की जगह 50 का स्क्वायर, 2a हमें पता नहीं है तो a की जगह a ही आएगा, s की जगह आ जाएगा 20, डिस्प्लेसमेंट इज 20। So this is the given substitution. So this becomes 900, 2500, and 2 and 20 will get multiplied. This will become 40a. So ये आ गया minus 1600 is equal to 40a. So therefore a is equal to minus 1600 by 40. Minus 1600 by 40. So acceleration comes out to be minus 40 meter per second square. Units are 40 meter per second square. So this is our acceleration. So acceleration आ गई हमारी minus 40 meter per second square. अगर तो क्वेश्चन में acceleration लिखा होता फाइंड acceleration तो हम यहीं तक छोड़ देते, लेकिन हमें पूछा है फाइंड रिटार्डेशन। सो अगर एक्सेलरेशन -40 है तो मतलब रिटार्डेशन इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज रिटार्डेशन वर्ड का खुद ही मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो इसलिए वो नेगेटिव जो आया था वो रिटार्डेशन वर्ड के अंदर है। रिटार्डेशन के साथ आपको नेगेटिव नहीं लगाना है, लगा दिया तो वो गलत होगा। रिटार्डेशन -40 नहीं होगी, रिटार्डेशन 40 होगी। सो दैट इज योर कंप्लीट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन। एक एक लाइन पढ़ो। देखो इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स। ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है? with velocity of 4, starts to slide with velocity of 4। इसका मतलब सबसे पहले जो गिवन है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u which is 4 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट अगर अकेला होता, स्टार्ट टू विद रेस्ट होता तो u 0 होता, बट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 4 मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 4। उसके बाद का है रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखो इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके यूनिट्स आर ऑफ एक्सेलरेशन। सो दिस इज एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पे मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो क्या है लिखा हुआ है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमें पता है कि स्पीड हमेशा कम होती है, और आगे भी लिखा हुआ है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस। दोनों में से कोई एक चीज भी लिखी होती तब भी हमें पता होता कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यहाँ पे कई बच्चों की गलती होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है बिकॉज फ्रिक्शन है, एंड फ्रिक्शन में स्लो होता है ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिफोर इट स्टॉप्स। स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 0। आफ्टर दैट क्वेश्चन में जो निकालना है वो लिखा है हाउ फार। हाउ फार इट विल गो। हाउ फार का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कितनी दूर जाएगा। दूरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम। दैट मींस दीज आर द 4 क्वांटिटी। जैसे कि हमें पता है 4 क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें से 3 गिवन और 1 फाइंड करने वाली, और गिवन में u और a चाहिए ही चाहिए जो कि हमारे पास है।
तो इन चारों में कौन सा फॉर्मूला फिट होगा? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, third equation of motion, which is v square minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as. इसके बाद वैल्यू डाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा 0 स्क्वायर, u है आपका, u is your 4, 4 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन माइनस 0.5 एंड s हमें निकालना है. सॉल्व करके दिस विल कम आउट टू बी -16 इज इक्वल टू -1 into s. सो s आ गया आपका 16 meters. So it stops after covering 16 meters. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट से पता चल रहा है कि दिस इज एक्सेलरेशन. उसके बाद आया है हाउ मच डिस्टेंस. तो साफ साफ पता चल रहा है डिस्टेंस इज क्वेश्चन मार्क. डिस्प्लेसमेंट एस का सिंबल होता है इक्वेशंस में. 8 सेकेंड्स. यूनिट से पता चल रहा है इट इज टाइम 8. उसने कहा है आफ्टर स्टार्ट. आफ्टर स्टार्ट मतलब स्टार्ट हुआ है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो आफ्टर स्टार्ट इज इनिशियल वेलोसिटी 0. So these are the 4 given quantities. 4 चीजें given होनी चाहिए आपको, एक फाइंड करने वाली 3 given. So we have all the 4 things. So कौन सी equation fit होएगी? Therefore using second equation of motion. Second equation of motion, which is S is equal to ut plus half at square. तो s निकालना है, u की वैल्यू डाल दी 0 into 8 प्लस हाफ into 5 into 8 का स्क्वायर. तो पहली वाली क्वांटिटी तो 0 ही हो गई और सेकंड वाली क्वांटिटी आपकी हो गई 5/2 into 8 का स्क्वायर 64. So you get 160 meters as your displacement. So this is your answer. So ये हमारा next question. इसमें हमें क्या क्या पता है? Train begins from a station. Start हुआ है तो इसलिए u is equal to 0 with uniform acceleration. Uniform acceleration से we get the information. It travels 20 kilometers. So किलोमीटर यूनिट से पता चलता है कि it is distance या displacement. ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो into 1000 करेंगे, so it becomes 20,000 meter. Equation of motion में always everything in SI unit. आगे चलते हैं तो पता चलता है 3 minutes 20 seconds. That means time is 3 minutes 20 seconds, which is 3 into 60. मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और 20 सेकंड्स तो है ही है, दैट इज 200 सेकंड्स. निकालना क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ स्पीड चेंज? सो रेट ऑफ स्पीड चेंजेस एक्सेलरेशन इज क्वेश्चन मार्क. रेट ऑफ स्पीड चेंज मतलब एक्सेलरेशन निकालना है. तो यहां से हमारे पास गिवन में ये 4 क्वांटिटीज हैं, आ चुकी हैं गिवन एंड फाइंड में. हेंस वी विल सी कौन सी इसमें इक्वेशन फिट होगी. इसमें होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले राइटिंग डाउन द फॉर्मूला. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वैल्यू डाल देंगे 20,000 इज इक्वल टू 0 इंटू 200 टाइम के लिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो हमें निकालनी है, टाइम के लिए आ गया 200 का स्क्वायर. सो इट बिकम्स 20,000 इज इक्वल टू 0
प्लस 4 1 2 3 4 टाइम्स a बाय 2, 200 का स्क्वायर हो गया 40,000. So this becomes 20,000 is equal to, ये 2 से कट गया 20,000 ही आ गया. So it becomes 20,000 A. So therefore A is equal to 1 meter per second square. So this is your answer. Acceleration is 1 meter per second square. So let us see ये क्वेश्चन कैसे होना है. इसमें क्या क्या गिवन है. बाइक मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड. 20 meter per second. Meter per second is the units of velocity. Moving means it is present velocity, that is initial. Speed at the rate of 0.1. 0.1 के units बता रहे हैं कि it is acceleration. ये acceleration है. How far will it go? How far मतलब कितना दूर. दूर मतलब distance निकालना है. In 10 seconds मतलब time given है 10 seconds. So these are the 4 quantities which is given. So UAST, इसमें कौन सी equation fit होती है. Second equation. Using second equation of motion, S is equal to UT plus half AT square. So S is equal to, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 20 into 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1, t की वैल्यू 10 और उसका स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. दिस विल कम आउट टू बी 200 प्लस 0.1 into 100 divided by 2. So 200 and this will come out to be 5. So therefore displacement is 205 meters. So that is your. So very 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 important question. Highlight कर लो इसे और mark कर लो. So देखो सबसे पहले हमारे पास आया इसमें acceleration of 4 meter per second square. So 4 क्या है. acceleration है. काफी बच्चे सोचते हैं एक्सेलरेशन 4 है, बट ध्यान से देखो लिखा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वहां से पता चलता है इट इज -4. एक्सेलरेशन इज -4. एक और वर्ड है ब्रेक्स अप्लाइड. सो ब्रेक्स अप्लाई करने से भी हमें पता चलता है दैट एक्सेलरेशन इज -4. दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक विद स्टूडेंट्स टू. अगला है कार स्टॉप्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी 0 तो होता है जब स्टार्ट होती है, बिगिन होती है. स्टॉप्स मतलब रुकेगी बाद में, तो v0 इन 5 seconds. so time is 5 seconds. क्वेश्चन में लिखा है how far will it travel. how far will it travel मतलब displacement is equal to question mark. displacement is equal to question mark. अब हमें सोचना है कि A, B, D, S में कौन सी इक्वेशन है. Which equation fits in these 4? Now comes the important points and keywords. जैसा कि आपको बताया गया था, आपके पास 4 क्वांटिटीज चाहिए ही चाहिए, 3 गिवन और एक फाइंड करने वाली, वो यहाँ पे हैं. लेकिन उसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. वो था कि उन 4 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी गारंटीड U और A होनी चाहिए. एक U और दूसरा A गारंटीड चाहिए ही चाहिए चारों में से. यहां पे देखो सिर्फ A पता है हमें, U नहीं पता है. इसका मतलब अगर वो टर्म मिसिंग है, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड U. सो फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा U फाइंड करना होगा हमें. क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि U फाइंड करो, लेकिन
when we solve and we use important keywords, जिसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ है, यू एंड ए आर मस्ट, सो पहले यू निकालना पड़ेगा। तो अगर मेरे को यू निकालना है तो क्या क्या फिट होगा? मेरे को ए गिवन है, मेरे पास वी गिवन है, मेरे पास टी गिवन है और मेरे को यू निकालना है। तो अगर मैं इन चारों को देखूं, क्या फिट होगा इन चारों में? इन चारों में जो फिट होता है दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, वहां से हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, सो जो कि क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू -4, t की वैल्यू 5, सो 0 इज इक्वल टू u -20, u -20, therefore u is equal to 20 meter per second, u is equal to 20 meter per second. Now since we have u, we can go to what is required. अब हमारे पास क्या क्या है, फिर से लिख लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है। s निकालना है, u पता है, a पता है, v पता है, t पता है। सो कौन सी इक्वेशन फिट होगी? एक्चुअली देखो इस बार 5 की 5 टर्म है, आपको पता है टोटल 5 टर्म्स होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, 5 की 5 टर्म है। तो आप सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो। सो हियर वी कैन डू विद एनी इक्वेशन, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। वी विल बी डूइंग विद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रेफर करेंगे। आप सेकंड से भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो दैट विल आल्सो गिव यू 100% करेक्ट रिजल्ट, but I would like to use the third equation of motion, which is v square minus u square is equal to 2as. Why? Because हमारे पास v given है 0, तो कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएंगी। एक क्वांटिटी तो डायरेक्ट 0 होगी, u है 20 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन इज -4, s हमें निकालना है, so this comes out to be -400 is equal to -8s. So therefore s comes out to be 50 meters. So this is your answer, and please mark this question very very important. इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस यूज हुई हैं, and very important concept ki a and u are must, that is being used in this question. Mark it extremely important. So this is another important question, बहुत important question है, इस टाइप का ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आएंगे। So thrown vertically up से हमें पता चलता है कि acceleration is -10 meter per second square या 9.8 या 9.81, लेकिन माइनस, then speed of 10, so u is equal to 10 meter per second। हमें निकालना है हाइट अटेन्ड, मतलब s निकालना है, एंड टाइम टेकन मतलब t निकालना है। टू रीच द टॉप, टॉप पे क्या होता है, वेलोसिटी इज 0। सो यूजिंग, अगर हमारे पास a गिवन है, u गिवन है, t निकालना है, v गिवन है, तो वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो 0 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, सो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 10t। सो ये 10 इधर आ गया तो बन गया 10t इज इक्वल टू 10, सो देयरफॉर t is equal to 1 second. This is the time. Now for finding displacement, we can use second or third equation, but we will try to use the third equation because v is 0 hai, so calculation will be easier. V square minus u square is 2as. So 0 square minus 10 square is equal to twice of -10 into s. So -100 is equal to -20s.
So S आ गया यहाँ से 5 meters. So this is the. So देखो next question में हमें given है कि ball is dropped. So dropped से we come to know u is 0 plus we also come to know acceleration is plus g. तो मतलब plus 10 या 9.8 या 9.81 but in plus positive में आएगी acceleration. Height 40 है तो units देखो क्या है meter. It means displacement is 40 m. Then हमें निकालना है with what velocity it will strike. तो u तो already given है तो इसका मतलब हमें v निकालना है. So इन चारों में कौन फिट होता है? We will use third equation of motion in this. So v square minus u square is equal to 2as. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे v square minus 0 का square is equal to 2, 10 and 40. So this will come out to be v square is equal to 800. So therefore v is equal to under root of 800 meter per second. इसको solve करेंगे तो it will become 20 root 2 meter per second. And then root 2 की अगर value डाल दें हम which is 1.41. So this will become 28.2 meter per second. So this is your velocity जिससे वो नीचे strike करेगा. Hi guys, I hope you understood the topic. आपको अच्छे से समझ आया and do like and subscribe the channel ताकि आपको और भी topics की और भी chapters की videos आती रहें and you keep learning and do comment us below if you have any doubts and we'll try to clear it as soon as possible. And high five guys, do like, subscribe, share, comment and keep learning.